इन इंडिया लाइक पेशेंट्स की हमें इलाज चाहिए सस्ते में हो जाए। सर हाउ डू यू टैकल दैट? सो वेन एवर यू कम टू माई हॉस्पिटल, कॉस्ट की हमने कहीं बात ही नहीं करते। सारी बात होती है कि हम कितने अच्छे तरीके से अपने पेशेंट को एक बेस्ट एंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट का एडवांटेज दे सकते। सम एक्सपर्ट्स सेज कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज स्टिल इन दैट लर्निंग कर्व। व्हाट इज दैट? भाई वो सॉफ्टवेयर ही है ना जो बार बार उस लेजर पैटर्न को डालता है, चेक करता है, वो चेक करता है परफेक्ट फोकस नहीं आ रहा, उसको बैक ट्रेस करता है, इस लेजर पैटर्न को और रिफाइन करता है। सो अल्टीमेटली दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज डूइंग ऑल दिस बैकग्राउंड थिंग्स फॉर यू, ताकि एक ऐसा पैटर्न मैं निकालूं कि वो जब मैं पेशेंट को ट्रीट करूं तो पेशेंट की नजर नॉर्मल से भी बेटर हो जाए। सो सर व्हेन इट कम्स टू लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी, व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? जब भी कोई पेशेंट अपना लेजर से चश्मा हटा रहा है तो 3 चीजें उसकी चेक होना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टेस्ट है पेंटाकैम, जिसमें मेनली हम कॉर्नियल थिकनेस जो है, पुतली की मोटाई जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कॉर्नियल सिमेट्री, और थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है चेक करनी, वो ड्राई आईज। सर ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं, इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं। सर एज अ डॉक्टर or as an ophthalmologist, why we don't trust Indian brands as compared to imported ones? नहीं, ऐसा नहीं है यार। There are a lot of Indian brands which have the credibility and we are using them regularly. Welcome to DocPod. Here we will have discussions on research and latest advancement in medicine and science. Welcome to DocPod. In today's episode of DocPod, we are going to have a discussion regarding a journey of an ophthalmologist, how he manages his day-to-day activities. Then we are going to have a discussion regarding a new type of technology in refractive surgery, which is by the name of Innovize. So after that, we are going to have a discussion regarding ICLs, which are implantable collamer lenses. Then we will incorporate this podcast with a different type of refractive surgeries. So in today's episode, we have invited Dr. Rahil Chaudhary, who is managing director of I7I Hospitals. He has a Guinness World Record for performing 250 surgeries also. And when it comes to bringing out eye awareness, he is leading the way forward in social media with gathering around 2 million social media followers across all his channels. So let's welcome him. Welcome Dr. Rahil Chaudhary on DocPod. Thanks for accepting my invitation to be on this show. Thank you, Satyam. Absolute pleasure to be with you. So sir, as today we will be going to talk about your story and a new procedure which is launched in India for refractive surgery. So sir, let's start with your story. So sir, there is a limited time, then you have to give international presentations, you have to do surgeries, you have to do OPDs. Then how do you maintain work life balance? Satyam, there is no work-life balance. Elon Musk doesn't have work-life balance. Mark Zuckerberg doesn't have work-life balance. Steve Jobs did not have work-life balance. Bill Gates doesn't have work-life balance. Jeff Bezos doesn't have work-life balance. So how can I expect my life to work out in a balanced way? So if you're passionate about something, a wise man once said that if you love what you do, you don't have to work a single day. Right. So all these things come with so much of passion that end of the day I'm only enjoying it more and I'm only craving for more. And I love how my life is, and I just love being a part of it. So sir, how did you develop passion for ophthalmology itself? Well, it's been tuned into me since my childhood. I am the second generation ophthalmologist in the family. So this was all started by my father 30 years back. And I've seen him growing up, and that is where you want to follow your father's footsteps, and that is where you develop interest and passion for the subject. So sir, as a doctor and as an entrepreneur, you are managing both. But when it comes to the patient, व्हाट्स योर अप्रोच? क्योंकि सर एक एंटरप्रेन्योर की अप्रोच रहेगी कि आई हैव टू कवर अप माई कॉस्ट फॉर द हॉस्पिटल्स, देन एक डॉक्टर की अप्रोच रहेगी आई हैव टू गिव
a maximum patient satisfaction, but when it comes to price, how do you manage that? सी सत्यम, एंड ऑफ द डे मेरी ट्रेनिंग जो है एज अ डॉक्टर एंड एज अ सर्जन ही हुई है. सो एंड ऑफ द डे स्टिल माई फर्स्ट प्रायोरिटी आर माई पेशेंट्स एंड आई वॉन्ट टू गिव देम द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल इन द वर्ल्ड. But to give them that best treatment, I need the best of equipments. I need the best of technology. I need the best of manpower, best of doctors in my team, best of paramedics in my team, and best of infrastructure to support all this. So, end of the day, have to think like an entrepreneur as well. I have to also run a business that can be sustained. And if I have a system like that, only then I can give the best to my patients. So it goes hand in hand. So to give the best treatment, you need to procure the best technology, and that technology comes at a cost. And to bear that cost, you have to have a business setup so that you can sustain and continue giving the best to your patients. And sir, when it comes to chains, like you yourself are running 9 hospital chains. So sir, it is very important कि हर chain में भी that best equipment हो. तो अब in India, like patients है कि we want to go for something less, कि हमें इलाज चाहिए सस्ते में हो जाए. Sir, how do you tackle that? See Satyam, for me, the priority is best treatment. The priority is quality treatment. Cost is secondary. So, मैं खुद भी वो सस्ता वाला काम कभी नहीं करूँगा. I would always thrive that कोई बात नहीं, थोड़ा सा खर्चा अभी हो जाए. महंगा पछता है एक बार, सस्ता पछता है बार बार. तो अभी थोड़ा सा खर्चा करके एक बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को दे दो कि अभी यहाँ पे कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करके पेशेंट को आगे जाके खर्चा अपना और करना पड़ रहा है. सो वेन एवर यू कम टू माई हॉस्पिटल, कॉस्ट की हमने कहीं बात ही नहीं करते. सारी बात होती है कि हम कितनी हाई क्वालिटी, कितने अच्छे तरीके से अपने पेशेंट को एक बेस्ट एंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट का एडवांटेज दे सकते हैं, डिलीवर कर पाएँ दैट बेस्ट क्वालिटी. सो सर, अब जैसे आई हैव सीन लॉट ऑफ योर वीडियोज़ कि एक प्रोसीजर आया है in refractive surgery which is by the name of Innovice. Describe me, what is that procedure? Let me help you understand in a very layman's language. फर्स्ट करो हम एक सूट खरीदने जा रहे हैं मार्केट में. तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं. या तो हम रेडीमेड सूट में से कोई एक साइज़ में अपने आप को फिट कर लें, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, इसमें से अपने आप को कोई फिट कर लें. या हमारे पास आज की डेट में एक ऑप्शन होता है टेलर मेड फिटेड सूट, कि एक इंसान आपके पूरे बॉडी का मेजरमेंट लेगा और उसके हिसाब से आपके सूट को बनाया जाएगा. सो डेफिनेटली जो टेलर मेड फिटिंग है वो रेडीमेड फिटिंग से बेटर है. सेम कॉन्सेप्ट बिटवीन वेवलाइट प्लस इनोवाइस टेक्नोलॉजी एंड ओल्डर टेक्नोलॉजीज. तो अभी तक जो हम ट्रीटमेंट्स कर रहे थे, जैसे स्टैंडर्ड लेसिक ट्रीटमेंट्स था, सिल्क था, स्माइल था, देवर वन फिट ऑल ट्रीटमेंट्स. मान लो 3 पेशेंट्स मेरे पास चश्मा हटवाने आते हैं, तीनों की आंख में 4 का नंबर है, तो तीनों का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल सेम करा जाएगा. इसमें किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन नहीं है. ट्रीटमेंट रेडी है और उसको आपको पेशेंट की आंख में ट्रीट करना है उससे. तो अभी तक जो ट्रीटमेंट्स थे वो एक स्टैंडर्ड गोल्ड स्ट्रैंड्स आई मॉडल होता है, उस पे बेस्ड थे. देयर वाज नो कस्टमाइजेशन, नो पर्सनलाइजेशन. नाउ विद वेवलाइट प्लस इनोवाइज, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हम इस ट्रीटमेंट को आपकी आंख के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं. अब रेडीमेड ट्रीटमेंट नहीं है कि हमें आपकी आंख में फिट करना है. अब हम क्या करते हैं कि आपकी आंख का एक डिजिटल आई ट्विन बना लेते हैं. तो एक मशीन है, वो मशीन जो है आंख के सारे मेजरमेंट्स लेती है और आंख का एक डिजिटल कॉपी बना देती है, डिजिटल 3D डिजिटल ट्विन बना देती है, जिसको हम कहते हैं आई अवतार.
अब ये जो अवतार है, इट इज अ मॉडल, इट्स अ डिजिटल मॉडल। डिजिटल मॉडल ऑफ द हाँ, आई। बेसिकली एक मशीन ने आपकी पूरे आई का मेजरमेंट लेके एक डिजिटल मॉडल को रेडी कर दिया। ओके। अब ये जो डिजिटल मॉडल है ये एग्जैक्टली वैसी बिहेव करता है जैसे आपकी आंख बिहेव कर रही है, क्योंकि आपकी आंख से तो बना ये मॉडल। अब इस डिजिटल मॉडल पे जो कंप्यूटर है, जो एआई सॉफ्टवेयर है इनोवाइस का, वो एक वर्चुअल सर्जरी करता है। मतलब Okay. कंप्यूटर पे ही लेजर सर्जरी हो रही है। और दैट मॉडल, हाँ, तो एक अगर डिजिटल मॉडल है, ये सारा कुछ अभी कंप्यूटर पे चल रहा है, अभी रियल आई में कुछ नहीं हुआ। ओके। तो रियल आई से एक डिजिटल मॉडल बनाया, उस डिजिटल मॉडल पे कंप्यूटर ने एक वर्चुअल सर्जरी करी, तो उसको लेजर से, डिजिटल मॉडल को ही लेजर से ट्रीट करा कंप्यूटर में ही। और उसके बाद ये देखा कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, और उसने देखा कि अभी रिजल्ट परफेक्ट नहीं है। 90%, 99% लाइट परफेक्ट फोकस हो रही है, 1-2% लाइट अभी ठीक से फोकस नहीं हो रही। तो वो इस लेजर पैटर्न को चेंज करता है और फिर देखता है कि लाइट बिल्कुल परफेक्टली फोकस हो रही है कि नहीं। अभी भी फोकस नहीं हो रही, वो उसको और चेंज करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आइटरेशन। इस प्रोसेस से ये जो लेजर पैटर्न जो अभी डिजिटली चल रहा है, वर्चुअल सर्जरी हो रही है, तो ये सॉफ्टवेयर इस पैटर्न को रिफाइन करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, जब तक ऐसा पैटर्न नहीं मिल जाता जिससे आंख में जो लाइट एंटर कर रही है उसका फोकस बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। जब ये पैटर्न अचीव हो जाता है तो इस पैटर्न को हम उठा लेते हैं और लेजर मशीन पर ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर उस लेजर से पेशेंट की आंख को ट्रीट करा जाता है। तो जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट है वो एग्जैक्टली वही आता है जो वर्चुअल सर्जरी में हमने निकाला। और वर्चुअल सर्जरी में जो हमने लेजर पैटर्न निकाला वो उस आंख के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तो जब इस लेजर पैटर्न को रियल आई में डाला तो पेशेंट की जो विजन क्वालिटी है वो नॉर्मल से भी बेटर आ गई। तो हम कहते हैं एक नॉर्मल इंसान 6/6 देख सकता है, राइट, ईगल्स आई। हाँ, बट नॉर्मल विजन इज 6/6 विजन। बट नाउ विद दिस वेवलाइट इनोवाइज टेक्नोलॉजी माय पेशेंट्स आर सीइंग मोर देन देव एवर सीन इन देयर लाइफ्स। सो अगर वो चश्मे के साथ 6/6 देख रहे थे मेरे पेशेंट्स ऑपरेशन से पहले, तो वो चश्मा हटाने के बाद 6/5, 6/4, 6/3, ऑलमोस्ट डबल जो एक नॉर्मल इंसान देखता है उससे डबल विजन आ जाती है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस लेटेस्ट एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम ये कर पा रहे हैं। आज तक ये पॉसिबल नहीं था करना। दिस इज द फर्स्ट टाइम इस तरह की विजन हम पेशेंट्स को दे पा रहे हैं। सो दिस इज नाउ बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशंस इन रिफ्रैक्टिव सर्जरी। जैसे एक चीज होती है ना कि चीजें अपग्रेड हो गई, आईफोन 11 के बाद 12 आया, 12 के बाद 13 आया, गाड़ी के मॉडल अपग्रेड हो गए। एक होता है रेवोल्यूशन आ गया, कोई नई चीज आ गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आ गई। सो दिस इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ रेवोल्यूशन इन रिफ्रैक्टिव सर्जरी। ओके, सो सर अब जैसे इट इज़ विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक some experts says कि artificial intelligence is still in that learning curve. सर उसी तरह अब एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का भी एक इट इज़ अ लर्निंग कर्व। सर what is that? नहीं, see, artificial intelligence, when we talk about it, we understand that the more you use the technology, the more technology learns from you and then it adapts to you. Okay. Right? But that is not just the way in which artificial intelligence is working. It can be used in other ways as well. So this Innovize software, it is based totally off artificial intelligence. भाई वो सॉफ्टवेयर ही है ना जो बार बार उस लेजर पैटर्न को डालता है, चेक करता है, जो चेक करता है परफेक्ट फोकस नहीं आ रहा, उसको बैक ट्रेस करता है, इस लेजर पैटर्न को और रिफाइन करता है। सो अल्टीमेटली दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज डूइंग ऑल दिस बैकग्राउंड थिंग्स फॉर यू, ताकि एक ऐसा पैटर्न मैं निकालूं कि वो जब मैं पेशेंट को ट्रीट करूं तो पेशेंट की नज़र नॉर्मल से भी बेटर हो जाए। ओके, सी एंड ऑफ द डे हम इतनी हाई क्वालिटी पेशेंट को देना क्यों चाहते हैं? अक्सर मेरे पेशेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब चश्मा तो 25,000 वाला लेसिक भी हटाता है, तो हम इतना एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्च करें एक एडवांस टेक्नोलॉजी कराने के लिए? चश्मा तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी से हटा लेते हैं। सी आज की डेट में हमारा पर्पस सिर्फ चश्मा हटाना नहीं रह गया। वी अंडरस्टैंड कि पुरानी सारी टेक्नोलॉजी चश्मा हटा रही है, और चश्मा हटाने में तो एक तरह से हमें एक्सपर्टीज हो गई है। आज की डेट में
द आइडिया इज कि क्या मैं चश्मा हटाने के साथ साथ आपको एक ऑल टेरेन विजन दे सकता हूं कि लो लाइट में भी आपको अच्छा दिखे, लो कंट्रास्ट में भी अच्छा दिखे, दिल्ली में निकल रहे हो, सर्दी का टाइम है, फॉग हो रहा है, स्मॉग हो रहा है, तब भी आपको अच्छा दिखे, आप ब्राइट लाइट में जा रहे हो तब भी आपको अच्छा दिखे, रात में आपकी आंखें थक गई हैं तब भी आपको अच्छा दिख रहा है, कंटिन्यूसली अपना फोकस चेंज कर रहे हो, बिलियन ऑफ अ सेकेंड में दूर देख रहे हो, बीच का देख रहे हो, पास का देख रहे हो, डेप्थ ऑफ फोकस मेंटेन रहे। सो चश्मा हटाने के साथ साथ वी वांट टू गिव यू अ नेचुरल क्वालिटी, अ गुड क्वालिटी विजन, ऐसी विजन जो एक नॉर्मल इंसान की आंख में होती है, जिसकी आंख में चश्मे की बीमारी नहीं होती। इस तरह के विजन क्या मैं अब ऐसे पेशेंट में दे सकता हूं जिसकी आंख में चश्मा था, उसका चश्मा मैंने हटाया और अभी भी वो लेवल में मेंटेन कर रहा हूं। सो सर, अब जैसे दिस प्रोसीजर इट वर्क्स ऑन अ कॉर्निया, तो अब कॉर्निया में एक और तरह का, यू कैन से इट्स अ डिजीज और whatever we want to say it, कि keratoconus टाइप का एक, it's a वेरी कॉमन डिजीज ऑफ द कॉर्निया। disease ना, it is one of the disease of the cornea, that keratoconus. So when somebody is having keratoconus, will that procedure work in No. that eye? Once you have keratoconus in your eye, in your cornea, all these laser refractive procedures, लेजर का इस्तेमाल करना चश्मा हटाने के लिए, आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। केरेटोकोनस वाले मरीज की आंख में लेजर से चश्मा नहीं हटाना। क्यों नहीं हटाना? क्योंकि उसकी आंख की जो गोलाई है वो खराब हो गई है, गोल कॉर्निया चोंच बन गई है, कोन बन गया है, साथ ही साथ कॉर्निया की थिकनेस कम हो गई है। आप इसमें लेजर करोगे तो आपने केरेटोकोनस की बीमारी कोई और ज़्यादा बढ़ा दोगे। ओके, राइट। सो ऐसे सिचुएशंस में अगर एक केरेटोकोनस का पेशेंट अपना चश्मा हटवाना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको ये ध्यान रखना है कि उसका केरेटोकोनस स्टेबल हो चुका है, रुक चुका है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा, और कम से कम 1 साल का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए पेंटाकैम पे कि केरेटोकोनस की प्रोग्रेशन बंद हो गई है। उसके बाद अगर पेशेंट की आंख में सफिशिएंट एसीडी है, एंटीरियर चेम्बर डेप्थ, जो यूजुअली 2.8 के ऊपर होनी चाहिए, तो उस पेशेंट का हम एक ICL या फेकिक IOL टेक्नोलॉजी से चश्मा हटा सकते हैं। Okay. तो ये क्या चीज़ होती है? एक पतला सा लेंस है, इसमें आपके चश्मे की पावर होती है और इसको परमानेंटली आंख के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल कि हमारे आई के सिस्टम में पावर था, अभी हम चश्मा बाहर से दे रहे हैं, वो एक लेंस बना के अंदर डाल दिया और बाहर से चश्मा नहीं पहनना। सर एक मेरा क्वेश्चन आया विद ICL lenses have that holes. Why there are holes? See, ICL, it goes in front of your natural lens and behind your iris. अब इस जगह पर एक्वस की मूवमेंट है, जो एक्वस फ्लूइड है हमारी आंख में, वो यहाँ पर मूव करता है। ठीक है, यहीं से ये पीछे से प्यूपिल से होते हुए आगे जाके फिर कैनाल से निकल जाता है। अब आपने यहाँ पे एक ICL डाल दिया और मान लो उसमें छेद नहीं है, तो ये एक्वस की मूवमेंट डिस्टर्ब हो गई। तो जो पुराने वाले ICLs होते थे उसमें ये सेंट्रल होल नहीं होता था, तो एक्वस की मूवमेंट खराब होती थी और उस खराबी की वजह से आंख में कैटरैक्ट बन जाता था, मोतियाबिंद। और जब से ये छेद डाला है तब से ये मूवमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो कैटरैक्ट का इंसिडेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। मेरे हॉस्पिटल में तो ज़ीरो है, आज की डेट में ICL से कोई कैटरैक्ट नहीं होता। So this is one of the biggest advantages of putting that hole So sir, in the if center. ICL touches the front part, the iris part, then क्या chances है? नहीं, see, ICL डालने के लिए you need a space in the eye. Yeah, the अगर interior आपका chamber. ACD, internal ACD, not external, internal ACD अगर आपका 2.8 से कम है और आपने ICL डाल दिया, अब तो आपने ज़बरदस्ती उस लेंस को आंख में फंसा दिया है। अब वो इधर आगे भी टच कर सकता है, पीछे भी टच कर सकता है, एंगल्स को भी बंद कर सकता है, तो आपकी आंख में कैटरैक्ट भी हो जाएगा, ग्लूकोमा भी हो जाएगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। Okay, so मतलब a patient needs that वेरी space. इंपॉर्टेंट। सो एनीबडी हु इज ऑप्टिंग फॉर ICL प्रोसीजर, चश्मा हटाने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी चेक्ड इज ACD, ACD. internal ACD, not external, and that internal ACD should be more than 2.8 millimeter. For ICLs हम ये देखते हैं कि कितना ACD पेशेंट में है। So sir, when it comes to laser refractive surgery,
what is that criteria? राइट सी, जब भी कोई पेशेंट अपना लेज़र से चश्मा हटा रहा है तो 3 चीज़ें उसकी चेक होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जब हमारे यहाँ पे आता है हॉस्पिटल में पेशेंट तो हम उसके 15-16 टेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें 3 सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं। सबसे पहला टेस्ट है पेंटाकैम, जिसमें मेनली हम कॉर्नियल थिकनेस जो है, पुतली की मोटाई जो है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लेज़र जब चश्मा हटाता है तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम पुतली को घिस के अब्लेट करके उसकी मोटाई कम कर रहे हैं, पुतली में से कुछ टिश्यू हटा रहे हैं। हर 15 माइक्रोन का टिश्यू जब मैं हटाता हूँ 1 नंबर चश्मा ठीक हो जाता है। ओके। तो पुतली को हम पतला कर रहे हैं, तो एक मिनिमम थिकनेस मेरे को चाहिए। अगर उससे कम हो जाएगी पुतली तो पुतली खराब हो जाती है। ओके। तो एक एवरेज कॉर्नियल थिकनेस इंडिया में करीब 520 से 550 की होती है माइक्रॉन्स माइक्रॉन्स में, राइट। तो इतनी थिकनेस अगर आपकी है सो यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर लेजर प्रोसीजर्स। साथ ही साथ कॉर्नियल सिमेट्री या कॉर्नियल टोमोग्राफी चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये देखना ज़रूरी है कि कॉर्निया की स्ट्रेंथ ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने लेज़र कर दिया और कॉर्निया की स्ट्रेंथ कम हो गई और इसमें एक एक्टेजिया करके प्रॉब्लम होती है, ये बन गई। ओके। और थर्ड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है चेक करनी, वो ड्राई आइज, क्योंकि ये सारे लेजर्स का साइड इफेक्ट है ड्राइनेस। तो आपकी आंख में अगर पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग ड्राइनेस है और आपने लेज़र कराया तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप बहुत परेशान हो जाओगे। ओके। So sir, this one was the refractive procedures. There is one more, you can say, evolution in cataract surgery, which is FLACS, femto laser assisted cataract surgery. What is this procedure? नहीं, फ्लैक्स इज a type of a cataract surgery Okay. where we are using femto laser to do the procedure. And फ्लैक्स भी अब अपग्रेड हो गई है, फ्लैक्स में भी अब AI जुड़ गया है। Okay. So now the upgraded version is artificial intelligence based robotic laser cataract surgery. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मेजॉरिटी काम जो है एक फेम्टो लेज़र मशीन से होता है। सो वी आर काइंड ऑफ एलिमिनेटिंग ह्यूमन एरर एंड मेकिंग प्रिसीजन 100%। भाई आप एक गोला हाथ से बनाओ या आप एक गोला सॉफ्टवेयर के हेल्प से बनाओ या कंपस से बनाओ, तो जो सॉफ्टवेयर से गोला बना या जो कंपस से गोला बना वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, जो हाथ से बना वो बिल्कुल परफेक्ट हो नहीं सकता। तो सिमिलरली जब हम अब टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर गए हैं तो वी आर इम्प्रूविंग द परफेक्शन एंड इस लेज़र मशीन के हेल्प से हम पूरी सर्जरी लेज़र से ही आंख के अंदर ही अंदर कर देते हैं। तो मेन स्टेप आपका लेज़र कर देता है जहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, फिर पेशेंट की आंख में ये जो लेज़र ने लेंस को घोल दिया उसको सक्शन से निकाल के आंख में एक विद अ फेकोएमल्सिफिकेशन मशीन, सो वी टेक इट आउट विद सक्शन, जो लेज़र ने सारे कैटरैक्ट को घोल दिया था, एंड वहाँ पे हम एक नए लेंस को इम्प्लांट कर देते हैं। सो द एडवांटेजेस इज कि एक तो प्रिसीजन बढ़ गई, सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो गई, ह्यूमन एरर खत्म हो गए, एंड रिकवरी अपनी और फास्ट हो गई। So sir, as you were talking about this Innovize technology, is it possible ki we can show a surgery in our podcast? Well, of course we can show the surgery on your podcast, but for that you'll have to come to my hospital. Sir, I am willing to come. Most welcome anytime. So in fact I can show you the steps कि कैसे हम लोग आई का डिजिटल अवतार बनाते हैं, कैसे उसमें वर्चुअल सर्जरी होती है, कैसे एक परफेक्ट लेज़र पैटर्न को निकाला जाता है और कैसे उस लेज़र पैटर्न से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। सो आई कैन शो यू ऑल ऑफ दिस। मोस्ट वेलकम टू कम ओवर एनी टाइम टू माई हॉस्पिटल। Thank you so much, sir. So sir, we should conclude this topic. अब sir, every innovation we are hearing about, it is happening in America or Europe. Sir, as a country or as a community, as a ophthalmic part of a ophthalmic community, I want कि इंडिया में भी इनोवेशंस का एक फेज़ आए। सर, हाउ कैन एन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कैन कोलैबोरेट विद अ मैन्युफैक्चरर जिससे सर हम भी वो इनोवेशंस ला पाएँ? सी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैक्सिमम रिसर्च एंड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इज़ हैपनिंग इन द डेवलप्ड नेशंस, अमेरिकन यूरोपियन नेशंस में हो रही है, कंपैरेटिवली इंडिया में बहुत कम है। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो रीज़न है ब्रेन ड्रेन, सो द बेस्ट टैलेंट्स ऑफ द कंट्री उनको बाहर अच्छी सैलरी, अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं, दे टेंड टू सेटल अब्रॉड एंड डू द रिसर्च एंड एवरीथिंग।
सेकंड है कि हमारे कंट्री में रिसर्च को इतना ज़्यादा पुश भी नहीं करा जाता. सो द इंस्टीट्यूशनल जो सिस्टम होता है रिसर्च का वो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है. प्लस हमारी कंट्री में फंड्स का इशू है. तो रिसर्च करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है. एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिसर्च में पैसा लगाया, वो पैसा वेस्ट हो गया, कोई रिसर्च का आउटकम ही नहीं निकला. तो मल्टीपल बैरियर्स हैं. बट नाउ स्लोली थिंग्स आर चेंजिंग. आई एम सीइंग मोर पीपल कमिंग फॉरवर्ड. इंडिया में रिसर्चेज होनी शुरू हो गई है, इंडिया में इनोवेशन शुरू हो रहे हैं, इंडिया से बहुत सारे नए नए पेपर्स निकल रहे हैं. तो स्लोली बट दिस थिंग इज नाउ चेंजिंग. एंड आई एम श्योर इन द कमिंग ईयर्स वी विल बी वन ऑफ द पावर हाउसेस for the research and innovation. for research innovation in the world. So sir, if we want to become that powerhouse, we should start this dialogue now. Absolutely. So we can prepare it for the forward. बिल्कुल. So sir, अब जैसे अब सेम वे अब सर ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं, इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं. सर एज अ डॉक्टर और एज एन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, वाई वी डोंट ट्रस्ट इंडियन ब्रांड्स एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड वंस? नहीं, ऐसा नहीं है यार. देयर आर लॉट ऑफ इंडियन ब्रांड्स which have the credibility and we are using them regularly. बट कभी कभार हम लोग ये देखते हैं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी है वो कंपेयर टू अमेरिकन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स थोड़े से कम है. सो जब तक हम उस लेवल पे नहीं आते, एट पार नहीं आते, तब तक इंडियन प्रोडक्ट्स की वो वैल्यू कभी मार्केट में हो ही नहीं पाएगी जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की है. सो स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस इज आई थिंक द नीड ऑफ द आवर. Need of the hour. So sir, this was an amazing short talk with you, but Wonderful. I want to do it more, but we are time constrained. Sir, I would like you to conclude this podcast. I think we'll conclude this podcast with the surgical video. Right? For sure, sir. So I invite you to my hospital. Come over. मैं पेशेंट्स को भी दिखाता हूँ, ऑडियंसेस को भी दिखाता हूँ कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है इससे हम चश्मा कैसे हटाते हैं और पेशेंट की विजन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Yes, and sir, it will be a good podcast with the surgery incorporated in it. Absolutely. Looking forward. Thank you so much, All right. sir. तो सत्यम, अब हम खड़े हैं रिफ्रैक्टिव ओटी में. तो यहाँ पे हम चश्मा हटाने के लेज़र वाले ऑपरेशंस करते हैं. तो लाजपत में हमने तीनों लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लगाई हुई है. सो ये जो मशीन देख रहे हो ये कॉन्ट्यूरा वाला लेज़र है. ये जो देख रहे हो ये सिल्क की मशीन है, सिल्क ऑपरेशन होता है. और वो जो पीछे देख रहे हो ये वेवलाइट वाली मशीन है, यहाँ पे वेवलाइट प्लस इनोवाइज का ऑपरेशन होता है. बट जैसे मैंने बताया था कि वेवलाइट प्लस जो है ये 2 स्टेप्स में होता है. तो एक इसका डायग्नोस्टिक मशीन है जो ब्रेन है, जहाँ पे हम सारी कैलकुलेशन प्लानिंग करते हैं और फिर वो सारा डाटा मशीन में ट्रांसफर होता है जिससे लेजर ऑपरेशन होता है. सर वो कोई मशीन है जिसमें डिजिटल मॉडल बनता है? हाँ, तो डिजिटल मॉडल वाली मशीन में अभी दिखाता हूँ. वो नीचे लगी हुई है और ये ऑपरेशन वाली मशीन है. राइट. तो हम नीचे चलते हैं और वो दिखाता हूँ कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्लानिंग कैसे करते हैं. तो सत्यम, ये जो मशीन है इस मशीन का नाम है इनोवाइज साइट मैप. यहाँ पे लिखा भी हुआ है. तो इस एक मशीन में अब 3 टेक्नोलॉजीज हैं: हार्ट्समैन शैक वेवफ्रंट एनालाइजर, शेमफ्लंग टोमोग्राफी एंड पार्शियल कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री या बायोमेट्री. तो ये जो मशीन है ये हमारी आई का एक 3D डिजिटल ट्विन या आइवतार बनाती है. उस आइवतार को हम इनोवाइज सॉफ्टवेयर से वर्चुअल सर्जरी से ट्रीट करके एक परफेक्ट लेजर पैटर्न निकालते हैं. एक बार दिखा दें यहाँ पे. तो इस तरह से हम लोग लेजर पैटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं और फिर इस लेजर पैटर्न को हम लोग मशीन में ट्रांसफर करते हैं और वहां से पेशेंट का ऑपरेशन होता है. ओके. तो सर अब जैसे आपने 3 मशीन्स दिखाई थी, वन इज सिल्क, अनदर वन इज कंटूरा एंड थर्ड इज वेवलाइट इनोवाइज. तो सर इन तीनों में सर डिफरेंस क्या है? सी, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो 3 जगह पर काम होता है: क्वालिटी में, सेफ्टी में और रिकवरी में. तो मैक्सिमम क्वालिटी विजन, आज तक हमें इस तरह की विजन नहीं मिली. 6.5, 6.4, 6.3 ईगल्स आई विजन विद मैक्सिमम सेफ्टी एंड इंस्टेंट रिकवरी. आज करा, कल से दिखना शुरू. 2-3 दिन का ध्यान रखना है. अपना ट्रॉपिकल कंट्री है, धूल मिट्टी होता है यहाँ पे. 2-3 दिन थोड़ा सा घर के अंदर रह लो, रेस्ट कर लो. नए सिस्टम के साथ बॉडी अडेप्ट हो गई, सेट हो गई. 3 दिन बाद अपने काम पे लग जाओ. अब सर जैसे स्माइल है एंड एक प्रोसीजर सिल्क है, इस प्रोसीजर का सर नाम है इनोवाइज, राइट?
तो सर अब जैसे स्माइल एंड सिल्क आर ऑन KLX प्रोसीजर्स, दिस मशीन इज बेस्ड ऑन विच प्रोसीजर? सी, 3 तरह से हम लेजर आंख में डाल सकते हैं. या तो हम डायरेक्ट डाल दें, दैट्स कॉल्ड द सरफेस बेस्ड ट्रीटमेंट, या हम फ्लैप बना के डाल दें, या हम फ्लैपलेस लेंटिक्यूल काट के निकाल दें. सो वेव लाइट कैन बी डन आइदर विद द फ्लैप और फ्लैपलेस सरफेस, दोनों में परफेक्ट है. तो फ्लैप वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं, फ्लैप लेस वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है. थैंक यू सर.